Hello students, welcome to the R Square. So in the previous class we were discussing about the wealth definition. Okay, and today we will discuss about the welfare definition. So welfare definition was introduced by whom? Introduced by Alfred Marshall. Okay. So welfare definition was introduced by whom? Introduced by Alfred Marshall. So wealth definition of Adam Smith was criticized by a huge manner. That is why the neoclassical economist Alfred Marshall introduced his welfare definition about the economics. Okay, so the welfare definition is otherwise also known as the neoclassical definition. Okay, either तमरो कौन है पारे it is mentioned the welfare definition or mention the neoclassical definition of economics. Okay, सेटा जो mention कर दबा it is otherwise known as neoclassical definition. Okay, when it was introduced in 1890. Okay, so it was introduced by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. Okay, Principles of Economics. So you have to mention all the things in your introduction. After the introductory part, let we discuss about the statement and definition. Okay, in his definition, he mentioned that economics is a study of mankind in ordinary business of life. According to Marshall, economics is the study of mankind in ordinary business of लाइफ. सो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो कॉमन ह्यूमन बीइंग के ऑर्डिनरी लाइफ को वो स्टडी करता है. ओके, अबाउट हिज कंजप्शन, अबाउट हिज परचेजिंग पावर, अबाउट हिज एक्सपेंसेस एंड ऑल द थिंग्स. ओके, so after the introduction you have to mention the definition. Okay, after the definition what comes? After the definition the times comes for the characteristics of the definition. Okay, so the characteristics we हमने कौन mention नहीं की से हमने देखिला को पड़ेगा. In the welfare definition, the first characteristics is economics as a social science is the study of human activities in the society. So first हम characteristics mention करिगा तो पड़ेगा. It studies human activities within the society. So इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये क्या करता है? तुम्हारा ह्यूमन का एक्टिविटी को सोसाइटी में स्टडी करता है. सो विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? ओके, इकोनॉमिक्स इज ओनली रिलेटेड विद द मनी मैटर. ओके, दैट इज व्हाई इट स्टडीज द कंजप्शन एंड एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द ह्यूमन सोसाइटी. सो इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज within the society. That is our first characteristics. And the second characteristics is the activity
must be related with the use of material goods. Okay, so what did he define? He defined that the activity must be related with the acquisition of material goods and the use of material goods. तो सोसाइटी में ये क्या करता है? ह्यूमन के एक्टिविटी को स्टडी करता है, उसके साथ कौन से तरह का एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी से ह्यूमन क्या करता है? कंजप्शन करता है या किसी भी गुड्स को वो परचेज करता है. ओके, then time comes for the third characteristics of the definition. Third characteristics is that welfare is the aim and main motto of life. So according to him, welfare is the end, which means कि human goods are must be related with the acquisition of and consumption of materialistic things. Okay, and the welfare is the end and the main motto of life. Welfare क्या होना चाहिए? हमारा end होना चाहिए and main motto होना चाहिए लाइफ का. हम किसी भी तरह की कमोडिटी को क्यों कंजप्शन करते हैं? Only because of some kind of benefits. Okay, कुछ बेनिफिट के लिए ही हम उस चीज को कंजप्शन करते हैं. उस बेनिफिट को ही हम क्या कर सकते हैं? बेनिफिट की वजह से ही हमारा कुछ वेलफेयर होता है. तो तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा आया वेलफेयर डेफिनेशन में. पहला क्या? इट शुड बी ह्यूमन, इट स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन द सोसाइटी. सेकेंड वन इज द एक्टिविटीज मस्ट बी रिलेटेड विद द यूज ऑफ मटेरियल गुड्स. And the third one is welfare is the end and main motto of life. Okay, so पहले तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा मेनली आया तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बाद आया कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स. So after the characteristics the fourth thing comes, that is the criticism. Criticism हमको जरूर लिखना चाहिए. Without criticism we could not get 7.5 marks. ओके, डेफिनेटली हमको लिखिबा को पड़िबो कोन क्रिटिसिज्म न लिखिले हमको सफिशिएंट मार्क केही देबे नाकि. सो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज इट ओनली इंक्लूड्स criticism. So first criticism is it only includes materialistic thing. So पहले criticism में what did he define? He defined that it only includes the materialistic things. Materialistic things means which have a shape, and which commodity does not have a shape may be not included in the economical thinking. Okay, so हमको ये देखना पड़ेगा किस चीज का कुछ सेट है या मटेरियलिस्टिक सेट होने के कारण ही वो इकोनॉमिक्स में वो काउंट हो जाएगा, यानी उस चीज का कुछ वेलफेयर होगा. ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा बहुत ही सारे सर्विसेज है, जिस तरह के तुम्हारा क्या सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ ए पुलिस एंड सर्विस ऑफ ए लॉयर, all the things are not included in the welfare definition because he only includes the materialistic things. That is why other modern economists have been criticized the welfare definition or the neoclassical developed definition. Okay, so the second criticism is welfare definition is not clear because he only includes the beneficial things. ओके, कौन किसके लिए क्लियर नहीं है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी को उन्होंने क्या ऐड किया है. लेकिन हमारे सोसाइटी में बहुत ही सारे चीज है जिन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कंजप्शन करते हैं. जैसे कि तुम्हारा क्या
तुम्हारा बॉम्ब है, बंदूक है, और तुम्हारा क्या जैसे कि तुम्हारा गन है, इससे बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्या क्या है उसमें इंक्लूड किया है। सोसाइटी में उन सब चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिगरेट भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, अल्कोहल भी कुछ लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया है। दैट इज वाई ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय अदर इकोनॉमिस्ट, because these things are also available in our society, and these things are also consumed by the common man. That is why he has been criticized by other economists. Okay, then time comes for the third criticism, that welfare is a subjective concept. Welfare is a subjective concept. So welfare is a subjective concept. It cannot be measured objectively. हम एक चीज को क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन करने के बाद उसमें से बेनिफिट्स कुछ मिलता है या कुछ लॉस होता है, वो इतनी आसानी से हमें पता नहीं लगता। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वेलफेयर इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ए नैरोर सेंस। हम ऐसे ही एक थ्योरी के वजह से हम वेलफेयर किस चीज में है या लॉस किस चीज में है वो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इन ए साइंटिफिकल वे। ओके, बट मर्साल ने उन सब चीज़ों को ऐसे कुछ तरह से वो मैंने मेंशन नहीं किया है। जस्ट एज ए ऑब्वियसली उन्होंने ऑब्वियस थिंकिंग उन्होंने क्या मेंशन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है दैट वेलफेयर, दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिगार्डेड एज ए वेलफेयर रिलेटेड थिंग्स एंड दीज आर नॉट। दैट इज व्हाई ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ओके, देन द फोर्थ क्रिटिसिज्म इज मर्साल डेफिनेशन। Marshall definition makes economics as a social science. Okay, the fourth criticism is Marshall's definition makes economics as a social science. All we know that the economics is a subject matter of social science, but accurately, properly, economics is not a social science. It is a human science, human being science. Why? Because all the society related things are not included in the economics. ओके, सोसाइटी में बहुत ही तरह की चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे तुम्हारा क्या बहुत ही अलग तरह के एस्पेक्ट है, लेकिन उन साइकोलॉजी हो या किसी भी तरह के एस्पेक्ट हो, उन सब चीज़ों का इकोनॉमिक्स में कोई काम नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड ओनली विद द एक्वाजिशन ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। इट इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग which are related with the acquisition and consumption of the human being. Okay, so welfare is a subjective concept as we know, but he makes economics as a social science. But economics is totally not a social science, it is a human being science. Okay, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चार चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज, पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन। सो वेलफेयर डेफिनेशन कब तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ था, 1890। कब, 1890। वेलफेयर डेफिनेशन इज अदरवाइज नोन एज व्हाट, इट इज अदरवाइज नोन एज द नियोक्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, जदि अगर तुमर कोन हबो क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे कि मेंशन द नियोक्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन यू हैव टू मेंशन द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, so the concept was introduced by whom? The concept was introduced by Alfred Marshall. So what is economics according to him? Economics is a study of mankind in ordinary business of life. ओके, उसके बाद आया तुम्हारा क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आया तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा,
तो क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा। इन 4 क्रिटिसिज्म को तुम्हें यू हैव टू मेंशन इट, अदरवाइज यू डोंट गेट ए परफेक्ट मार्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन द फाइनल क्रिटिसिज्म। इन चारों को लिखने के बाद ही तुम्हें क्या 7.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस में तुम हर डाउट को क्लियर में भी नहीं कर सकते हो, इसलिए यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी डाउट हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा वीडियो के नीचे। ओके, उसके बाद अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन करना चाहते हो यानी R² का, सो यू हैव टू कॉल अस। सो व्हाट इज आवर नंबर? आवर नंबर इज 9090768267। Okay, my name is Samson। किसी भी तरह का अगर डाउट हो या तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना पड़ा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनेल रॉबिन्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक बाय।